Hello everyone, welcome to GS Booster Short, your daily dose for GS preparations. In our today's lecture, I am going to discuss with you the Forest Conservation Amendment Act. This act has recently been put up by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for consultation from the public and to take public's review on these proposed amendments. So, this topic has also been covered up by today's Indian Express's Explained section. And this topic happens to be important with respect to our environment section of the examination, with respect to GS3, and the manner that this very act has been put up for public consultation also has a strong relation with governance part as to taking opinion from public while formation of legislations. So, it also serves as an example of good governance also. So, let us have a look at this very act and the amendment. So, first of all, what is Forest Conservation Act 1980 actually about? So, after independence, whatever acts we were having with respect to forests, they were basically in continuation of the Britishers' policy, that is with respect to extracting revenue from the forest and how to make that convenient. This is also important because forests also served as a major source of revenue to the cash-strapped Indian government at the time of independence as well. By 1980, this very act, the need for Forest Conservation Act was felt, and therefore this act was brought in. This act specifically provides for conservation of forests and for matters connected therewith. So, this was the first act which dealt with specifically with respect to conservation of forests and how it is to be done. In order to understand as to how this conservation is to go about and to which areas this very act will apply to, we need to understand the definition of forests given under this very act. So, at the time that this act was enacted, this act defined forests as to reserve forests and the national parks. So, these two areas were largely part of forests as per this very act. However, in 1996, there was a case filed in the Supreme Court of India. This case was named as T.N. Godavarman Tirumpat versus Union of India. In this very case, Supreme Court expanded the definition of forests and rather increased its scope manifold, in such a manner that Supreme Court now asked the government to categorize all the lands which are specified as forests in its records, irrespective of the ownership of that very land, as forests. So, basically hota kya hai that government basically categorizes the nature of use of the land. जिस भी यूज के लिए वो लैंड है या जिस भी तरीके की वो लैंड है, गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं लिखती है. गवर्नमेंट कह सकती है that it is a productive land, it can also say that it's a barren land, it can say that it's a commercial land, residential land, agricultural land. In this very manner, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जहां जहां पे भी जिस भी लैंड को फॉरेस्ट लैंड कही गई, सपोजिटली आपके पास एक लैंड है एंड उस पर जंगल उगा हुआ है एंड गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट में उसे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करी हुई है या उसका नेचर ऑफ लैंड को फॉरेस्ट दिखाया हुआ है. सो दिस इन टर्न वुड मीन दैट नाउ योर लैंड विल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजंस एंड द रिस्ट्रिक्शंस as mentioned in the Forest Conservation Act of 1980. Besides this, taking a further step ahead, Supreme Court also adopted the literal definition of forests, and it said that all those lands which will fall under the literal definition of forests will also be subject of this very act, that is Forest Conservation Act. Now, let us see as to why the need was felt for this amendment, and we will also talk about as to what are the amendments actually. So, basically Forest Conservation Act may, if you have to do anything with respect to your forest land, then you are required to take permission from the central government, that is Ministry of Environment. So, अगर आपको अपनी लैंड का नेचर चेंज करना है, उस पर खेती करनी है, उस पर एक हाउस बनाना है, then every time you are required to do that thing, you will have to take permission from the central government. So, this brought up many problems for people and impediments for people to use their land. So, सबसे पहला ऑब्जेक्शन था forests on private land.
identification of forests on private land is subjective and arbitrary to some extent. अब नेचुरली आपकी लैंड पे जो खेती उपजाऊ वेजिटेशन हुई है, क्या उस वेजिटेशन के कारण वह फॉरेस्ट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, ये एक आर्बिट्ररी डिसीजन हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का. बिकॉज सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया दैट नाउ यू हैव टू यूज द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड different dictionaries would have different definitions, and it can be an expansive definition or it can be a limited definition as well. So अब officials के ऊपर रह गया कि whether or not they will take up your land as a forest land or not. So this also led to a lot of harassment of the people. This results in a lot of resentment, resistance, particularly from private individuals and organizations. Considering any private area as forest would restrict the right of an individual to use his own land for any non-forestry activity. So अब एक इंडिविजुअल अपनी ही लैंड को नहीं यूज कर पा रहा था. Now इससे एक टेंडेंसी शुरू हो गई. अर्लियर क्या होता था, अगर एक इंडिविजुअल के पास एक पैच ऑफ लैंड खुला पड़ा हुआ होता था जिसको वो नियर टाइम में यूज करना नहीं चाहता होता था, तो वो कुछ इंडिविजुअल्स वहां पे कुछ ना कुछ उगा देते थे या पेड़ ही उगा देते थे हरियाली के नाम पे. बट नाउ इंडिविजुअल्स स्टार्टेड फेयरिंग कि अगर अब वहां पे आपने उपजाऊ कुछ हरियाली लगा दी, कुछ पेड़ उगा दिए, तो वो लैंड अल्टीमेटली सरकार कह देगी ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर है, एंड कल को जब आप वहां पे कुछ करना चाहेंगे तब आप वो कर नहीं पाएंगे विदाउट सरकार की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन. एंड देयरफॉर एक टेंडेंसी शुरू हो गई पब्लिक के अंदर कि अपनी लैंड को वेकेंट रखा जाए. इंडिया का एक गोल है, इंडिया का ये गोल है कि वी नीड टू हैव 33% of our entire land area under forest cover. At present it is roughly about 23%. Despite of various efforts by the government, अभी तक ये 33 वाला टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं. तो ऐसी डेफिनेशन देने के कारण सोचा जाता है कि इस डेफिनेशन के बहाने हम काफी सारी लैंड को, जिसको तरीके से फॉरेस्ट लैंड नहीं भी कहा जा सकता, उसे भी हम फॉरेस्ट लैंड कैटेगराइज कर देते हैं. इवन बैरन लैंड्स को भी हम फॉरेस्ट लैंड कैटेगराइज कर देती है सरकार बिकॉज ऑफ द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ द डेफिनेशन. इससे दो चीजें होती हैं, ना तो आपकी फॉरेस्टेड एरिया के अंदर जो लैंड आप कर रहे हैं डिफाइन वो एक्चुअल कोई फॉरेस्टेड एरिया की लैंड होती है, और दूसरे तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से अपनी लैंड पे कोई वेजिटेशन उगाना भी चाहते होते हैं तो भी वो उसे डिस्करेज कर देती हैं. देन स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. एक्ट ने इस बारे में जो कंसल्टेशन के लिए रखा है, द एक्ट हैज ओपनड अप दिस वेरी आर्ग्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ दिस रिजेंटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन. बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट इस देश में काफी सारी लैंड को ओन करते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वह हर एक लैंड पे उसी टाइम पे काम कर रहे हो. सो व्हाट हैपेंड इज कि 1980 के इस एक्ट के आने के बाद जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रोड की खाली लैंड थी और जहां पे फॉरेस्ट उग गए थे, उस लैंड के ऊपर अब उन्हें काम करने के लिए परमिशन चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से. सो ये जो एक्स्ट्रा एडेड फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए अब उन्हें, ये जो एक्स्ट्रा कंसल्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट आई, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड के वर्क के अंदर एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट बन रही है आज की तारीख के अंदर. एंड इन देयरफॉर दीज मिनिस्ट्रीज हैव शोन अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द एम्बिग्यूटी एंड द आर्बिट्ररी नेचर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्स अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. लास्टली द स्पीड ऑफ क्लियरेंसेस. सो चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा करना होए, कोई इंडस्ट्री लगानी होए, या फिर कोई एक्सपेंशन रोड का करना, नेटवर्क का होए, जो क्लियरेंस की स्पीड है, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से यानी उसके ऊपर लोड इतना ज़्यादा है कि वो क्लियरेंसेस जल्दी से आती नहीं है, एंड देयरफॉर इसके करके काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिलेड रहते हैं, एंड देयरफॉर दिस एक्ट इन ऑल्सो सम मैनर इज कॉजिंग अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री की ऑफ रोड की जितनी भी लैंड है 1980 से पहले जिस पे फॉरेस्ट उग गए, उस लैंड को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं इस एक्ट के परव्यू से.
दूसरी ये अमेंडमेंट है कि अगर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए कोई जो बॉर्डर एरिया की लैंड है उसके ऊपर कोई काम करना है तो उनको उसके लिए भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। थर्डली, आज की डेट में एक ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं ऑफ ड्रिलिंग कि बिना फॉरेस्ट के एक्वीफायर्स को ख़राब करे वहाँ पे ड्रिलिंग करके नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस को निकाला जा सकता है। सो अगर इस नए ड्रिलिंग मेथड से अगर नेचुरल ऑयल या कोई गैस एक्सट्रैक्शन करनी है या मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है फॉरेस्ट में से, तब भी अलाउड होगा। लास्टली, स्ट्रिप प्लांटेशन अलोंग रोड साइड। सो आप देखते हैं कि जैसे कि रोड साइड के ऊपर पेड़ उगा दिए जाते हैं। अब पेड़ उगा दिए आज आपने, कल को जब आपको रोड एक्सपैंड करनी है तो फॉरेस्ट वाले आके कह देंगे तो फॉरेस्ट लैंड है क्योंकि यहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि भैया ये जो प्लांटेशन है ये रुकावट नहीं होनी चाहिए रोड्स के एक्सपेंशन के अंदर, एंड दिस वुड आल्सो बी एग्जेम्प्टेड। लास्टली ये बोला गया एक और चीज जो बीच में रह गई कि जो प्राइवेट लैंड्स हैं, जो स्टेट प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट्स के अंदर आती हैं, जो लोगों की प्राइवेट फॉरेस्ट की लैंड है, उस पे लोगों को वन टाइम कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत होगी अगर कोई उन्हें ऐसा वर्क करना है, बोनाफाइड वर्क करना है। सेकेंडली, वो 250 गज तक का अपना घर भी उसमें डाल सकते हैं, 250 स्क्वायर मीटर्स तक का घर भी बना सकते हैं उस लैंड के अंदर। सो इन दिस वेरी मैनर एक वन टाइम एग्जेम्पशन मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रोड्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, देन नेचुरल मिनरल्स की एक्सट्रैक्शंस जो फॉरेस्ट में करनी है उसके लिए थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है, एंड स्ट्रिप प्लांटेशन भी करी जा सकती है। नाउ लेट अस सी द कंसर्न्स। अब कंसर्न्स भी हैं एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, पीपल हु आर एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, कि with respect to this very act. First of all, the activists say that relaxation of forest rules will facilitate corporate ownership and disappearance of large tracts of forests. So, ये चीज़ प्रमोट करेगी कि अब कोई कॉर्पोरेट भी फॉरेस्ट को खरीद पाए एंड उसे प्राइवेट लैंड जो या फिर कॉर्पोरेट्स के पास ऑलरेडी भी काफ़ी फॉरेस्ट की लैंड है कि उस वेरी लैंड को अब वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। दिस विल इंडीड लीड टू clearing down of forests. Then exemption of forests on private land. Even former forest officials have said कि इससे फॉरेस्ट की डिसअपेयरेंस होगी। क्यों? क्योंकि जो हिली स्टेट्स हैं वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में 4% जो पूरे उत्तराखंड की लैंड है वो आती प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर, लोग ओन करते हैं उस लैंड को। अब लोगों के पास अधिकार हो जाएगा कि वह है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर पाए। लास्टली, बिंदा कराज जी ये कहती हैं, ये सीपीएम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, ये कहती हैं कि यहाँ पे इस एक्ट में ट्राइबल्स और उनकी फॉरेस्ट राइट्स की और उनके इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं करी गई है कि अब ट्राइबल्स का क्या स्टेटस होएगा जो कम्युनिटी राइट्स एक्सरसाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, क्या वो भी कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे वहाँ पे या नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज दिस पॉइंट दैट दिस एक्ट इज लेफ्ट अकॉर्डिंग टू some of the people. Environmentalists say that exemption for road and railways on forest land acquired prior to 1980 will be detrimental to forest as well as wildlife. Opposition leaders say that relaxation of forest rule with again corporate ownership. So this is a bit of repetition. So environmentalists का ये कहना है कि अगर ये होएगा तो जैसे कि अरावली खत्म हो रही हैं उसी तरीके से और फॉरेस्ट लैंड भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज धीरे धीरे इससे फॉरेस्ट कटने शुरू हो जाएंगे। नाउ विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस पार्ट, ये बिल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेरी बिल। सेकेंडली, इस बिल ने बेसिकली जो कारण है उन्हें साफ साफ तरीके से लिखा, सच एज द रिजेंटमेंट amongst Ministry of Railways and Ministry of Roads, and therefore it has brought up this act of the government of putting this bill up for consultation has actually allowed for a vital public debate on this very subjects, and maybe at the end of the day we will see that we get some innovative answers with respect to the same also, that how this problem could have been solved by some other manner.
नाउ बिसाइड्स दिस, अगर हम इस लॉ को देखें तो इस लॉ ने जहां पर एक एग्जेम्पशन का एरिया बना दिया है, साथ के साथ जो बाकी बचा हुआ फॉरेस्ट एरिया है उसके विद रिस्पेक्ट में उसकी कंजर्वेशन के लिए लॉ को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। एंड देयरफॉर इन्होंने कोई भी इंफ्रिंजमेंट होएगी अगर उस एक्ट की, तो उस एक्ट के लिए उन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल बनाने का भी काम किया है। साथ ही साथ it has also disallowed any kind of diversion of certain forest lands। कुछ लैंड्स को इन्होंने और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, एंड जहां पर पहले उन फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन किया जा सकता था उस लैंड को और भी क्रिटिकल प्रोटेक्शन एरिया के अंदर डाल दिया है। लास्टली, इस एक्ट के थ्रू जो कि एक एम्बिग्यूटी रहती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वुड बी अ फॉरेस्ट एरिया, उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए काफ़ी मदद मिलने वाली है। So this is all with respect to this very lecture. Should you have any doubts, feel free to put your doubts in the comment section. I'd be more than happy to reply to them. Thank you and have a nice day.